ایران کی اس خطرناک جنگ Death to America. ایران کا سب سے بڑا ویپن پتہ ہے کیا ہے؟ نہیں ایٹم بوم نہیں، بلکہ اس جنگ میں ایران کا سب سے بڑا ویپن ہے دا اسٹریٹ آف ہارموز۔ یہ ہے دنیا میں ایران کی لوکیشن، اور ایران کے بالکل پاس سمندر کا ایک چھوٹا سا راستہ ہے۔ یہ دکھنے میں تو چھوٹی سی جگہ ہے، لیکن اصل میں یہ کوئی عام راستہ نہیں، Now, oil prices have been on a roller coaster. کیونکہ یہ چھوٹا سا راستہ ہے۔ So small that you couldn't even fit Luxembourg inside of it. آج پوری دنیا کی اکانومی کا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ، The strait is a major international shipping route for oil and gas. کیونکہ اس چھوٹے سے راستے کے آس پاس ساری ایسی کنٹریز ہیں جہاں دنیا میں سب سے زیادہ آئل پیدا کیا جاتا ہے۔ About 20% of global oil supplies are transported through the waterway. جیسے کہ کویت، The country with the 5th largest oil reserves in the world. عراق، بحرین، قطر، UAE اور ایون سعودی Saudi عربیہ۔ Aramco. It is the largest energy company in the world. اور اسی تیل کی وجہ سے آج یہ ساری کنٹریز دنیا کی سب سے امیر کنٹریز میں سے ہیں۔ ان کنٹریز میں تیل پروڈیوس ہونے کے بعد یہ سارا کا سارا تیل اسی سمندر کے چھوٹے سے راستے کو کراس کر کے پوری دنیا تک پہنچتا ہے، جس سے یہ ساری کنٹریز بہت پیسہ کماتی ہیں، اور پھر اسی تیل سے پوری دنیا کی اکانومی چلتی ہے۔ ہر دن اس راستے سے 2 کروڑ سے بھی زیادہ آئل بیرلز گزرتے ہیں، مطلب ہر سال اس راستے سے دنیا میں ٹریلینز آف ڈالرز کا بزنس ہوتا ہے۔ مطلب یہ راستہ دنیا کی اکانومی کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، لیکن اس راستے میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس راستے کے بالکل بیچ میں گزرنے کے لیے ایک بہت ہی تنگ جگہ ہے، اور ہر کشتی کو یہاں سے گزر کر جانا لازمی ہے، اور یہ چھوٹا سا راستہ صرف اور صرف 40 کلومیٹر ہے، اور پچھلے 40 سال سے اس چھوٹے سے راستے پر ایک ہی آدمی کا کنٹرول ہوتا ہے، اور وہ ہے ایران کا سپریم لیڈر۔ یہی وہ راستہ ہے جہاں سے آپ کی گاڑی یا موٹر سائیکل تک پیٹرول پہنچتا ہے، اور اسی راستے کی وجہ سے بسز، ٹرینز اور ایون جہاز بھی چلتے ہیں، اور اس بات کا ہمیشہ سے ایران کو اچھی طرح پتا ہے۔ اسی لیے جنگ شروع ہونے سے پہلے ایران بار بار امریکہ کو دھمکیاں دے رہا Iran has now issued a new warning to the United کہ States. اگر تم نے ہم پر حملہ کیا تو ہم یہ راستہ بند کر دیں گے، No ship is allowed to pass the Strait of Hormuz. جس سے پوری دنیا کی اکانومی کو ایک بہت بڑا دھچکا لگے گا۔ لیکن امریکہ ایران کی دھمکیوں سے رکا نہیں، بلکہ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر اپنی پوری طاقت سے ایران پر حملہ کر دیا، اور جنگ شروع ہوتے اسرائیل کے 200 فائٹر جیٹس تیزی سے ایران کی طرف روانہ ہوئے، اور ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کو شہید کر دیا۔ اپنے سپریم لیڈر کو کھونے کے بعد ایران نے بھی امریکہ اور اسرائیل کو جواب دینا شروع کیا۔ اسرائیل کے کئی سٹیز پر میزائلز فائر کیے۔ اس کے بعد ایران امریکہ کے بیسز پر بھی حملے کرنے لگا، اور آخر اب جب ایران کا سپریم لیڈر فوت ہو چکا تھا، ایران نے اپنی تاریخ کا سب سے بڑا ویپن نکالا جو اس سے پہلے ایران نے کبھی نہیں کیا تھا۔ اچانک ایران کے پاس اسٹریٹ آف ہارموز سے جتنی بھی کشتیاں گزر رہی تھی، اچانک ان بڑی بڑی سمندری جہازوں کے ریڈیوز بجنے لگے۔ ان ریڈیوز پر ایران کی نیوی کا میسج چل رہا تھا، جس میں ایران کی فوج نے ان جہازوں کو حکم دیا کہ آج کے بعد اس اسٹریٹ آف ہرمز سے ایک بھی کشتی نہیں گزرے گی۔ No ship in every type is not allowed to pass from a Strait of Hormuz. اور اگر کسی نے بھی اس راستے سے گزرنے کی کوشش کی، ایران کی فوج کے اس اعلان کے بعد ان بڑی بڑی کشتیوں نے
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खाली कर दी। Revolutionary Guard. ये सारी कश्तियां अब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के पीछे फंस चुकी हैं और इन कश्तियों में ऑयल के मिलियंस ऑफ बैरल्स पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आज कई कंट्रीज के पास आहिस्ता आहिस्ता ऑयल और गैस खत्म होने वाले हैं और दुनिया की इकोनॉमी तेजी से गिर रही है और बड़ी बड़ी कंट्रीज इंडिया, चाइना, जापान की इकोनॉमीज भी हर्ट हुई हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉकेड करने से भारत को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में भी इसकी वजह से पेट्रोल आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने वाला है। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया। इसी तरह के हालात बांग्लादेश में भी हैं Rich economies like Bangladesh. और यही सब कुछ अफ्रीका में भी हो रहा है। Petrol prices have been adjusted upwards in Nigeria at least 3 times. और इवन यूरोप में भी ईरान के इस वेपन की वजह से पेट्रोल और गैस की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। Since the beginning of this conflict, gas prices have risen by 50% and oil prices have risen by 27%. The 10 days of war have already cost European taxpayers 3 billion euros. मतलब ईरान ने अपनी सिर्फ कुछ ही कश्तियों से पूरी दुनिया की इकोनॉमी को इस वक्त कंट्रोल किया हुआ है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि कहा जाता है ईरान ने इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नीचे बड़े बड़े माइंस लगाए हुए हैं कि अगर कोई भी कश्ती ईरान की इजाजत के बगैर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर से गुजरेगी, ये माइंस उस कश्ती को तबाह कर देंगे। और जिन कश्तियों ने इसके ऊपर से गुजरने की कोशिश की है, ईरान ने उन पर हमला भी किया है। इन सारी कश्तियों को बंद करने के बाद ईरान ने दुनिया को एक ऑफर भी दी है कि अगर जो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरना चाहता है, उसे बस एक छोटा सा काम करना होगा। उस कंट्री को अपने मुल्क से अमेरिका और इजराइल के एम्बेसडर्स को बाहर निकालना होगा। लेकिन आज ये कोई पहली बार नहीं है कि किसी मुसलमान लीडर ने ऑयल को एक वेपन की तरह यूज किया, क्योंकि आज से 50 साल पहले एक और मुसलमान लीडर भी ऐसा था जिसने तेल के वेपन को यूज करके पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला कर रख दिया था। और वो मुसलमान लीडर था सऊदी अरब का बादशाह शाह फैसल। आज से 50 साल पहले जब अमेरिका और इजराइल मिलकर मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहे थे, शाह फैसल ने बिल्कुल आज की तरह ऑयल को बंद करके पूरी दुनिया के लीडर्स को अपने सामने सर झुकाने पर मजबूर किया था। और शाह फैसल के 50 साल बाद आज उसी तरह ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करके पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला कर रख दिया है। Price of gas is up to $3.29 a gallon. Continues to impact energy prices globally. देख, ज्यादा खुश होने के बजाय आज हमें दुनिया के हालात को थोड़ा गौर से देखना होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से दुनिया की इकोनॉमी तो गिर रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ से आगे इसके सिर्फ 2 ही बड़े आउटकम्स हो सकते हैं। पहला आउटकम तो ये है कि ईरान इसी तरह आने वाले कई अरसे तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इसी तरह बंद रखे, जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी इतनी कमजोर हो कि बड़े बड़े कंट्रीज मिलकर अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर इतना प्रेशर डाले कि वो मजबूर होकर ये जंग खत्म कर दे। देख, दूसरा आउटकम थोड़ा खतरनाक है। इस जंग से पहले ईरान अमेरिका को धमकी दे चुका था कि अगर अमेरिका ने उस पर हमला किया तो ईरान ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देगा। लेकिन ये जानते हुए भी अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। Our military is doing phenomenally. कुछ लोग आज ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका चाहता ही यही है कि ईरान ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करे, क्योंकि आज से 50 साल पहले जब ईरान पर उसके पहले सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी की हुकूमत थी, उस जमाने में भी बिल्कुल आज की तरह अमेरिका ईरान के सुप्रीम लीडर को पसंद नहीं करता था। इसीलिए अमेरिका ने एक और मुसलमान लीडर को सपोर्ट किया कि वो ईरान के खुमैनी पर हमला करे, और इस लीडर का नाम था सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन और खुमैनी की जंग शुरू हुई। पहले तो ऐसे लग रहा था कि सद्दाम हुसैन अमेरिका की मदद से खुमैनी को आसानी से हरा देगा, लेकिन जैसे जैसे ये जंग गर्म होती गई, सद्दाम हुसैन के हालात खराब होने लगे और सद्दाम हुसैन को समझ आ गया कि अब वो ये जंग नहीं जीत सकता। इसीलिए सद्दाम हुसैन अमेरिका से मदद मांगने लगा और अमेरिका से कहने लगा कि अब वो खुद इस जंग में आकर सद्दाम हुसैन की मदद करे और अपनी पूरी ताकत से
ईरान पर हमला कर दे। अमेरिका भी ईरान पर हमला करना चाहता था, लेकिन किसी पर भी हमला करने के लिए अमेरिका को हमेशा एक बहाने की जरूरत होती है। इसीलिए अब अमेरिका और सद्दाम मिलकर एक प्लान बनाने लगे और आखिर उन्होंने ये प्लान बनाया कि सद्दाम स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में जितने भी ईरान की कश्तियां हैं उन सब पर हमला करके उन्हें तबाह कर दे, जिसे देखकर ईरान गुस्से में आए और सद्दाम से बदला लेने के लिए इस स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को पूरी दुनिया के लिए बंद कर दे, जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी गिरने लगे और अमेरिका इस स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज का बहाना बनाकर ईरान पर हमला कर दे। जिसके बाद सद्दाम ने ऐसा ही किया, ईरान की सारी कश्तियां उड़ा दी। लेकिन उस जमाने में ईरान के सुप्रीम लीडर खुमैनी बिल्कुल भी गुस्से में नहीं आया और उसने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद नहीं किया। खुमैनी की इस जबरदस्त स्ट्रेटेजी से अमेरिका ईरान पर हमला नहीं कर सका। लेकिन अमेरिका तो अमेरिका है। 2 साल बाद अमेरिका ने एक नया बहाना बनाया और इस नए बहाने से ईरान पर दोबारा हमला कर दिया। इसी तरह अगर आज के हालात को देखा जाए तो हो सकता है अमेरिका एक बार फिर यही चाहता है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद करे, जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी गिरने लगे। और अब तक वो ईरान जिसे पूरी दुनिया इस जंग में एक हीरो समझती है, आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया की इकोनॉमी खराब होते देखकर दुनिया के लोग और कंट्रीज ईरान के खिलाफ होने लगे। The Strait of Hormuz off Iran, where new attacks is allowed to pass the Strait of Hormuz. और फिर डोनाल्ड ट्रंप एक सुपरमैन की तरह अपनी पूरी ताकत से ईरान पर हमला करे और दुनिया की इकोनॉमी को बचा ले और दुनिया उसे एक हीरो माने। और ये तो ट्रंप ने खुद भी कहा है कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज नहीं खोला तो मैं ईरान पर बहुत बड़ा हमला करूंगा और फिर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खोलकर ये मेरी तरफ से पूरी दुनिया के लिए एक गिफ्ट होगा। और अब तो ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी A message from the newly appointed supreme leader Mojtaba Khamenei अपनी पहली स्पीच में ऐलान कर दिया कि ये जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक हम आयतुल्ला अली खामेनेई और उन सारे बच्चियों की शहादत का बदला नहीं लेते, said Iran would avenge the blood of its martyrs. जिन्हें अमेरिका और इजराइल ने शहीद किया है। और ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज इसी तरह आगे भी बंद रहेगी। ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा।